जय गुरुदेव एवरीवन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। Good morning, children. Today we are going to cover the topic that is Bob and the bathtub. That is chapter number 4 from the English literature, Bob and the bathtub. Now you all must be thinking, what is bathtub? Bathtub मतलब क्या है? You all must be taking showers in the bathroom. आप लोग बाथरूम में हर रोज नहाते होंगे. But in bathroom you gonna find a bathtub. That is, in the picture you can see in the right corner a rectangle shaped tub in which you can fill in some water and you take a bath. एक rectangle shape का tub रहता है, उसके अंदर पानी भर के you can take a bath. Now let's get started. My brother Bob is 3 years old. My little brother Bob is 3 years old. मेरा छोटा भाई जो कि Bob वो 3 साल का है. He loves everybody and everything. वो हर किसी से और हर एक चीज से वो बहुत प्यार करता है. But what he likes best is the bathtub. But उसको सबसे ज्यादा पसंद क्या है? Bathtub. That I've already explained. A rectangle shaped tub in which you can fill in some water and take a bath. But Bob doesn't care if the bathtub is full or empty. बॉब को कोई परवाह नहीं है, चाहे वो बाथटब भरा है और खाली हो. Empty, that is खाली. Every morning, mom gives Bob a bath. हर कोई सुबह बॉब की मम्मा उसको नहलाती है. Bob likes staying in the bathtub. बॉब को बाथटब में रहना बहुत ही पसंद है. He doesn't want to come out. उसको बाहर ही नहीं आना है बाथटब से. Mom has to pull him out of the tub. उसकी मॉम को उसको खींच के बाहर निकालना पड़ता है. Pull out, that is बाहर निकालना, खींच के बाहर निकालना. Pull मतलब खींचना. Bob starts crying. Bob रोने लगता है. Bob, you have been in the tub for an hour, says mom. Bob, तू 1 घंटे से बाथटब में पड़ा है, उसकी मम्मा उसको बोलती है. Now put on your clothes and drink your milk. उसकी मम्मा कहती है अपने कपड़े पहन लो and have milk. दूध पी लो. No, no, cries Bob. But Bob मना करता है. नहीं नहीं. No clothes, no milk. कपड़े भी नहीं बदलने, दूध भी नहीं पीना. I want to stay here. वो जिद पकड़ता है, मुझे यहीं रहना है बाथटब में. If the tub is empty, Bob throws his toys into the tub. If टब खाली पड़ा रहता है तो बॉब उसमें उसके टॉयज डाल देता है. किसमें? बाथटब के अंदर. Then he climbs in and starts playing with them. फिर वो भी बाथटब में जाके उसके साथ टॉयज के साथ खेलने लग जाता है. He plays until we make him get out. वो खेलता ही जाता है until उसको कोई बाहर ना निकाले. So we have to keep the bathroom door shut. So उसकी मम्मा को और उसके फैमिली मेंबर्स को उसका बाथरूम डोर को शट मतलब क्लोज, उसका बाथरूम का डोर बंद ही रखना पड़ता है. Yesterday Bob gave me a shock. कल बॉब ने मुझे बहुत बड़ा शॉक दिया. मतलब शॉक मतलब चौंक जाना, सरप्राइज्ड. I filled the tub with water and bubble bath. उसने उसका बाथटब पूरा पानी से एंड बबल बाथ से भर दिया. किसने? उसकी मम्मा ने. I filled the tub with water and bubble bath. उसने water और bubble bath. Now again, what is bubble bath? Bubble bath is a powder or liquid form mixed with the water that forms bubbles. एक powder form या तो liquid form जो पानी के साथ मिलाया जाता है
जो बबल्स फॉर्म करता है, बहुत सारे बबल्स, लाइक क्लाउड्स, यू कैन सी बबल्स, एंड ऑल्सो नाइस फ्रेग्रेंस, a good smell coming out of it. That is bubble bath. Before I got into the tub, the telephone rang. टब में जाने से पहले ही फोन बजने लगता है. Telephone starts ringing. I shut the bathroom door and went to pick up the phone. मैंने बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया और मैं फ़ोन उठाने चली गई. A minute later, 1 मिनट के बाद, when I came back, जब मैं वापस आती हूँ, the bathroom door was open. बाथरूम का दरवाज़ा खुला पड़ा था, जबकि वो तो बंद करके गई थी. Bob was in the tub with all his clothes on. टब में कौन था? Bob with all his clothes on. मतलब कपड़े पहन के ही वो टब में घुस गया था. He was covered with bubbles. वो पूरा बबल से कवर्ड था. He was not alone. वो अकेला नहीं था. उसके साथ कौन था? Mac. Now who is Mac? Mac is his little dog, his pet. Mac was our little dog. उसका कुत्ता था Mac. Was with him in the tub. So Bob के साथ Mac भी था. Bob, what are you doing? I cried. उसने पूछा, Bob, तू क्या कर रहा है? I am giving Mac a bath. Bob ने क्या कहा? मैं Mac को नहला रहा हूँ. वो अपने कुत्ते को, that is Mac को नहला रहा था. I yanked मतलब पुल, बाहर निकालना. I yanked Bob and Mac out of the tub and called my mother. उसने, किसने? उसकी सिस्टर ने उसको एकदम पकड़ के बाहर निकाल दिया. Pulled out of the tub. Yanked, that is pulled out, pulling out. कहाँ से बाहर निकाला? टब से. That is yanked, बाहर निकालना. Pulled, that is sharp, pulled sharply, एकदम अचानक से पुल कर दिया. Bob and Mac out of the tub and called my mother. उसकी बहन ने बॉब और मैक को बाहर निकाल के उसकी मदर को बुलाया. Mother dried them off. उसकी मदर ने वो दोनों को सुखा दिया. Dried मतलब सुखाना. Then she asked Bob. फिर उसकी मम्मा ने बॉब को पूछा, How did you get into the bathroom? आप बाथरूम में कैसे घुसे? Bob reached up on his toes and turned the door knob. Bob reached up on his toes मतलब वो टोज से थोड़ा ऊपर होके डोर नॉब को टर्न ऑन कर दिया. दैट इज खोल दिया. नाउ व्हाट इज अ डोर नॉब अगेन? डोर नॉब इज a handle, a round shaped handle through which we can open and shut the door. एक राउंड शेप का हैंडल रहता है जिससे हम दरवाज़ा खोल सकते हैं और we can close the door as well. That is a door knob. उसने टोज के ऊपर जाके डोर नॉब को खोल दिया. I am a big boy, he said with a happy smile. बॉब क्या कहता है? मैं अभी बड़ा हो गया हूँ. He said with a happy smile. हंस के वो बोलता है, I am a big boy now. Last night Dad locked the bathroom door. कल रात उसके डैड ने बाथरूम का डोर लॉक कर दिया था. He put the key where Bob can't reach. उसके डैड ने वो कीज रख दी कहाँ? जिधर बॉब पहुंच ना सके. ऐसी जगह उसने कीज रख दी. Now that was all for the day. Now moving on towards the exercise. Number the pictures in order. Number the pictures in order. आपको यहाँ जितनी भी पिक्चर्स दिख रहे हैं उसको again go through the chapter, again read the chapter and story wise you have to arrange this picture. Accordingly to the story you have to arrange these pictures by giving the numbers 1, 2, 3, 4, 5 and 6. आपको स्टोरी के अकॉर्डिंग ये सारे पिक्चर्स अरेंज करने हैं. फर्स्ट, टिक द करेक्ट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन. आपको हर एक करेक्ट आंसर के आगे टिक मार्क लगाना है. फर्स्ट, व्हाट डज बॉब लाइक बेस्ट? सबसे ज्यादा बॉब को क्या पसंद था? दैट इज नो डाउट बाथटब. सबसे ज्यादा बॉब को बाथटब पसंद था. हु गिव्स बॉब अ बाथ एवरी मॉर्निंग? बॉब को कौन नहलाता था एवरी मॉर्निंग? हिज मॉम, उसकी मम्मा. Who filled the tub with water and bubble bath? टब को वाटर एंड बबल बाथ से किसने भर दिया था? उसकी सिस्टर ने. It's his sister. Fourth, who pulled Bob and Mac out of the tub?
बॉब एंड मैक को टब के बाहर किसने निकाला था? उसकी सिस्टर ने. अगेन उसकी सिस्टर ने बॉब और मैक को बाहर निकाला था. मैक इज हिज डॉग. सो द आंसर इज सिस्टर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु सेज दिस वर्ड्स इन द स्टोरी? ये वर्ड्स किसने बोले हैं? तो आपको अगेन स्टोरी रीड करके यू हैव टू फाइंड हु स्पोक दिस वर्ड्स. फर्स्ट इज आई एम अ बिग बॉय. ये किसने कहा था? बॉब ने. मैं अभी बड़ा हो गया हूं. नो क्लॉथ्स नो मिल्क. अगेन ये जिद किसने पकड़ी थी? बॉब ने. तो आंसर इज बॉब. आई एम गिविंग मैक अ बाथ. आई एम गिविंग मैक अ बाथ. अगेन हु इज मैक? मैक इज हिज डॉग. तो उसके डॉग को किसने नहलाया था? अगेन द आंसर इज बॉब. फोर्थ, नाउ पुट ऑन योर क्लोथ्स. नाउ अपने कपड़े पहन लो. ये किसने कहा था? उसकी मम्मा ने, मदर ने. हाउ डिड यू गेट इन टू द बाथरूम? आप बाथरूम में कैसे घुसे? अगेन दिस वर्ड्स बिन स्पोक बाय हिज मदर. आंसर इज हिज मदर. कंप्लीट दिस सेंटेंसेस. अगेन आपको गो थ्रू द चैप्टर एंड कंप्लीट दिस सेंटेंसेस. You have to complete this in complete sentence. First, Mac was dash. Mac कौन था? Little dog. Mac was a little dog. Second, Bob gave Mac. Bob ने Mac को क्या दिया था? Bath. Bob gave Mac a bath. Third, Dad locked the. Dad ने क्या लॉक कर दिया था? Bathroom door. Bathroom का door. Word power. Write the opposites of these words. You have to write the opposites in the given space from the word box that's already been given in this picture. उसमें से search करके आपको appropriate opposites you have to write in the given space. The first word over here is full. Full मतलब पूरा, भरा हुआ. Then भरा हुआ, the opposite of भरा हुआ is खाली, that is empty. So the opposite of full is empty. Second, here मतलब यहाँ. यहाँ का ऑपोजिट वहां, दैट इज देयर. हियर, देयर. थर्ड, ओपन मतलब खोलना. क्लोज, दैट इज बंद करना. द ऑपोजिट ऑफ ओपन इज क्लोज. नाउ अगेन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस ओवर हियर इज शट. अगेन ओपन का ऑपोजिट आएगा शट. शट इज सिमिलर टू क्लोज, बंद करना, दैट इज शट. शट एंड क्लोज इज वन ऑफ द सेम थिंग. फोर्थ, अंडर मतलब नीचे. ऊपर, that is over, under and over. Fifth, wet मतलब गीला. Dry, that is सूखा हुआ. The opposite of wet is dry. Sixth, take मतलब लेना. देना, that is give. Take, opposite of take is give. Seventh, push मतलब धक्का मारना. खींचना, that is pull. The opposite of push is pull. Push and pull. Eighth, throw मतलब फेंकना. Catch, पकड़ना. The opposite of throw is catch. Complete the incomplete word in each sentence. हर कोई sentence में आपको incomplete word complete करना है. First, Bob starts what? Crying. Second, he loves everybody. I have a little brother. The bathtub is empty. Bob gave me a big shock. He was covered with bubbles. He comes here every morning. So likewise, you have to complete the incomplete words in each sentence. Sort words into present and past forms. In the earlier topic, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ एन एप्पल. आपको अगर याद होगा 3 टेंसेस दैट वो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. सो अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दोज टॉपिक दैट इज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ एप्पल. एप्पल का एग्जाम्पल लेके आई एम गोइंग टू अगेन एक्सप्लेन यू 3 टेंसेस दैट इज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. सो मैंने एप्पल खा लिया. आई एट एन एप्पल. दैट इज पास्ट. मैंने ऑलरेडी एप्पल खा लिया. मैं एप्पल खा रही हूं. दैट इज ऑन गोइंग, करंट, प्रेजेंट. समथिंग इज गोइंग ऑन करंटली. दैट इज आई एम ईटिंग एन एप्पल. दैट इज प्रेजेंट.
एंड द थर्ड इज मैं एप्पल खाऊंगी, मैं एप्पल खाऊंगी, दैट इज फ्यूचर. बट यहाँ पे यू ओनली हैव टू कंसिडर टू फॉर्म्स, दैट इज पास्ट एंड प्रेजेंट. पास्ट दैट इज मैंने एप्पल खा लिया, प्रेजेंट दैट इज मैं एप्पल खा रही हूँ, दैट इज समथिंग इज ऑनगोइंग, समथिंग इज इन प्रोसेस. नाउ लुकिंग टू दिस वर्ड्स, द फर्स्ट वर्ड यू कैन सी इज गेट. गेट मतलब मिलना, गॉट मतलब ऑलरेडी मिल गया, गेट मतलब मिलना, गॉट मतलब ऑलरेडी कुछ मिल गया. मुझे लाइब्रेरी से आज किताब मिली, दैट इज गेट. मुझे लाइब्रेरी से बुक ऑलरेडी मिल गई, आई गॉट द बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी. मुझे बुक मिल गई लाइब्रेरी से, मुझे बुक मिलेगी, दैट इज गेट, प्रेजेंट, गॉट, पास्ट फॉर्म. ओके, गेट मतलब मिलना, गॉट मतलब ऑलरेडी मिल चुकी है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज गिव. गिव मतलब देना, तो गिव आएगा प्रेजेंट फॉर्म में, दैट इज डू में. गेव आएगा, गेव मतलब ऑलरेडी दे दिया, ऑलरेडी दे दिया, आई गेव द बुक, दैट इज पास्ट फॉर्म. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज केप्ट. कीप. कीप मतलब रखना, मतलब रखना. मैं चॉकलेट अपने पास रख रही हूँ, मैं चॉकलेट अपने पास रख रही हूँ, दैट इज कीप. दैट विल कम इन द प्रेजेंट, इन द डू पार्ट. केप्ट, मैंने ऑलरेडी चॉकलेट रख ली थी, दैट इज पास्ट. मैंने चॉकलेट रख ली थी, केप्ट. दैट विल कम इन द डिड पार्ट. keep in the do part, kept in the did part. Now moving on to the next word, that is drink and drank. drink मतलब पीना, drank मतलब ऑलरेडी पी लिया. मैं दूध पी रही हूँ, मैंने दूध पी लिया, आई ड्रैंक द मिल्क, दैट इज पास्ट. तो ड्रैंक आएगा डिड फॉर्म में, पास्ट फॉर्म, एंड ड्रिंक आएगा डू पार्ट में, दैट इज प्रेजेंट. नेक्स्ट वर्ड इज मेक एंड मेड. मेक मतलब कुछ बनाना, टू प्रिपेयर समथिंग, टू मेक समथिंग, एंड मेड ऑलरेडी बना लिया. सो आई एम मेकिंग अ पिज्जा, आई मेड अ पिज्जा. मैं पिज्जा बना रही हूं, दैट इज प्रेजेंट. मेक विल बी कमिंग इन डू पार्ट. तो डिड पार्ट इन द पास्ट फॉर्म में क्या आएगा? मेड. आई मेड अ पिज्जा मतलब मैंने पिज्जा ऑलरेडी बना लिया, दैट इज पास्ट. The next and last word is threw and throw. Throw मतलब फेंकना, threw मतलब फेंक दिया. मैंने कचरा फेंका, that is throw. मैंने कचरा फेंक दिया already, that is threw. So throw will come in the do form and the did form of throw is threw. So this was the past and present forms. So again moving on to the next question, that is what small words make this compound words? कौन से दो small words compound words को बनाते हैं? So the first is bathtub. So which two small words make a bathtub? Bath and tub are the two small words make this compound word, that is bathtub. Second, birthday. Birth and day are the two small words makes the birthday. Third, bathroom. Bath and room. Fourth, everybody. Every and buddy. Fifth, watermelon. Water and melon. Sixth, motherland. Mother and land makes motherland. In short, you only have to split the main word into two small words. आपको compound word को two small word में split करना है. The first already I've given, that is bathtub. Bath and tub. तो हमने bathtub को split कर दिया and we have made two small words, that is bath and tub. So bath and tub, these two small words makes bathtub. Likewise, you have to complete all these words. So this was all for the day. आपको ये exercise यहाँ तक ही करनी है. The rest of the exercise questions we will be covering up in our next video. आपको ये सारे क्वेश्चंस यू हैव टू डू इन द टेक्स्ट बुक इटसेल्फ. टेक्स्ट बुक में ही करना है इन द गिवन स्पेस. सो दिस इज ऑल फॉर द डे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.